Good morning, student. Yesterday we have done question number 11 to 16. Hope you have understood and have completed in your register. Today we will start with question number 17 and 18. 17 question, it is given, Kamal sold 2 scooters for rupees 19,800 each. It means now 2 scooters are given. First scooter and second scooter. And selling price of both the scooter, वन का भी और टू का जो सेलिंग प्राइस है दैट आर सेम, दैट इज 19,800 एंड हेयर ऑल्सो 19,800. देन इट इज गिवन गेनिंग 10% ऑन द वन. जो पहला स्कूटर उस पर उसको क्या हुआ, गेन परसेंट, दैट इज ऑफ 10%. एंड व्हेन ही सेल्स द स्कूटर, सेकेंड स्कूटर, ही गेट अ लॉस एंड दैट लॉस इज ऑफ 10%. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन. उन्होंने पूछा है टोटल गेन और लॉस कितना होगा, दोनों स्कूटर को सेल करके कितना गेन और लॉस होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, टू केसेस आर देयर. इन बोथ द केसेस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट स्कूटर एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द second scooter. So what is the formula of cost price when gain percent is given? 100 upon 100 plus gain percent into SP. And here when loss percent is given, the formula is 100 upon 100 minus loss percent into selling price. Now in first case we will find the cost price. 100 upon 100 plus 10 into 19,800. This will be equals to 100 upon 110 into 19,800. 0 and 0 is cut. 11 ones are 11 and 11 eights are 88, 180. It means the cost price will come 18,000. Now in the second scooter loss was given, so we will apply the formula 100 upon 100 minus 10 into selling price, that is 19,800. So what will be the cost price in this case? 100 upon 90 into 19,800. 0 and 0 is cut. Now 9 ones are, and here it will be 9 twos are 18, 9 twos are 18 and 0. So cost price will be 22,000. Now we have to find gain or loss for the whole transaction. For the whole transaction मतलब दोनों के combined हमारे को कितना profit और loss हुआ. So for what we have to do, what we will do in this case, first we will find total SP. Total selling price क्या था दोनों स्कूटर का. फर्स्ट स्कूटर का कितना था, 19,800, and for second scooter also it is given 19,800. So what will be the total SP, कितना SP होगा दोनों का मिला के, 39,600. Now we will find the total cost price. Total cost price we have to find it. Cost price for first scooter is 18,000 and cost price of second scooter is 22,000. So what will be the total cost price? Total cost price इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, 40,000. Now we have to find gain and loss. अब आपको total gain और loss percent find करना है. So first, if cost price is greater than selling price, अब यहाँ पे cost price greater है तो क्या होता है हमें, loss. तो आपने पहले loss find करना है. 40,000 minus 39,600, क्या फॉर्मूला था loss का, CP minus SP. Now after subtracting this, what you will get, 400 rupees 400. Now we have to find the loss percent. The loss percent formula is loss upon CP into 100. Then it will be equals to 400 upon cost price is 40,000 into 100. 2 zeros ये वाले कट गए, ये भी 2 zeros कट गए, 4 and 4 is cut. What is the answer? 1%. मतलब टोटल ट्रांजेक्शन में, होल ट्रांजेक्शन में कितना लॉस हुआ, 1%. So whenever the word whole transaction is given, what you have to do, first you have to find cost price in both the case, फिर टोटल SP, टोटल CP
कंपेयर करोगे कि क्या बड़ा है, सी पी बड़ा है या एस पी. अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड लॉस और लॉस परसेंट. लाइक दिस यू विल सॉल्व दिस पार्ट. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 18. अब carefully listen this question. Very easy question, but you have to be attentive while this. A buys an article for rupees 650. A ने buy किया है. It means cost price of A is equals to rupees 650. और किसको सेल किया? Sells it to B at a profit of 20%. तो जब इसने सेल किया, A ने B को सेल किया तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 20%. सो प्रॉफिट इज गिवन 20%. सो फर्स्ट वी विल फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ A. A का सेलिंग प्राइस निकालेंगे. अप्लाई द फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. फॉर्मूला यू विल राइट इट योर सेल्फ. अपने आप फॉर्मूला लिखना. आई विल डायरेक्टली डू द क्वेश्चन. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ये होता है ना आपका फॉर्मूला. नाउ व्हाट यू विल गेट? 120 अपॉन 100 इंटू 650. अब आप इसकी कटिंग करोगे, यू विल गेट रुपीज़ 780 एज द सेलिंग प्राइस ऑफ A. नाउ जो आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ A है, किसको सेल किया है? B को. तो वो B की क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे लिखोगे सेलिंग प्राइस ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ B, क्योंकि A ने B को सेल किया है तो B के लिए तो वो कॉस्ट होगी ना. सो रुपीज़ 780 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ B. नाउ फर्दर इट इज गिवन B सेल्स इट टू C एट अ लॉस ऑफ 20%. अब B ने C को किया है, तो जब B ने C को सेल किया तो उसको लॉस परसेंट कितना हुआ है? 20%. तो अब आपने किसका सेलिंग प्राइस निकालना है? B का. जो सेलिंग प्राइस ऑफ B होगा वो कॉस्ट प्राइस किसका होगा? C का. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ B तो आपको पता है 780. सो एंड लॉस इज 20%. तो आप पहले निकालोगे सेलिंग प्राइस ऑफ B. अगेन अप्लाई द फॉर्मूला. अब लॉस परसेंट है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. CP आपका कितना है? 780. Solve it. 80 upon 100 into 780. Zeros are cancelled. 78 8s are 624. So selling price of B is equals to cost price of C. और वो आपकी कितनी आई है? रुपीज़ 624. और आपको यहाँ से क्या पूछा गया है? What does C pay for it? C ने क्या पे किया? मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ C क्या आपकी? सो हेयर इट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ B इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ C. तो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ C अब आपकी क्या आ गई? रुपीज़ 624. दिस इज योर आंसर. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर रजिस्टर. लास्ट 2 सम्स प्लीज सॉल्व इट वेरी केयरफुली. ईजी है, बस you have to know the formulas. आपको formulas on the tip आनी चाहिए, then it will be very easy for you. Thank you. Now today we will start one new chapter. अभी आपने 2 ही questions किए हैं. 10 थे कि we will start with a new chapter 14A, that is linear equation. You have already done this linear equation in 6th also. आपने basic किया था linear equation का. What is this linear equation? Linear equation in one variable. वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वन अननोन वेरिएबल इज गिवन टू यू, लाइक 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30. ये आपको गिवन है. इट मीन्स आपको फाइंड करना है व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ x. x एक आपका अननोन वेरिएबल है. तो इसके लिए आप क्या करते थे? जो x का साइड होती है दैट यू कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जो सिंपल नंबर्स हैं जिनके साथ x और y नहीं है, यू हैव टू टेक इट टू द राइट हैंड साइड. सो व्हेन यू विल चेंज देयर साइड्स, अगर किसी की आप साइड चेंज करते हो देन यू हैव टू चेंज देयर साइंस ऑल्सो. फॉर दिस केस जैसे 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 को आपने शिफ्ट करना है. x तो उसी प्लेस पे ही है, उसको नहीं आप चेंज करोगे. जिस नंबर को आपने शिफ्ट किया दैट साइन विल बी चेंज. सो यहाँ पे 13 ऑलरेडी था, 4 को आप उस साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -4. सो
7x इज इक्वल्स टू 9. नाउ व्हाट यू विल डू, ये आपका मल्टीप्लाई है, जब कोई साइन नहीं होता इट मीन्स मल्टीप्लाई. सो x विल बी इक्वल्स टू, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. और आप कह सकते हो रेसिप्रोकल. व्हेन यू टेक इट 7 टू द राइट हैंड साइड इट विल बी रेसिप्रोकल, और you can say divide. So this will be your answer. Keeping these points in the mind, we will start with the exercise 14a. Question number 2 I am taking. In question number 2 it is given 2 bracket y minus 5 upon 2 is equals to 0.3. Now how to apply this? First of all, when the bracket is given, जब आपको bracket given होता है पहले आप उसको खोलोगे. So 2 you will multiply with y also and with this part also. So 2y, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो, माइनस 2 इंटू 5/2, और ये आपका डेसिमल में है, कन्वर्ट इट इंटू फ्रैक्शन 3/10. नाउ दिस 2 इज इन अ मल्टीप्लिकेशन, जैसे बॉडमास में आता है पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो ये आपका कट हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट, 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3/10. नाउ लेफ्ट हैंड साइड 2y, क्योंकि आपका ये वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल, 5 को आपने राइट हैंड साइड लेके जाओगे. 3/10 प्लस 5, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया. 2y विल बी इक्वल्स टू, अब आपने एलसीएम लेना है, 10 इज एलसीएम, तो आपका ये आ जाएगा 3 प्लस क्या होगा 50, 5 10s up. सो 2y इज इक्वल्स टू 53/10. तो y विल बी इक्वल्स टू 53/10, और नीचे आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, क्योंकि ये आपका इधर रेसिप्रोकल हो गया. नाउ इट कान बी कटिंग, कान बी पॉसिबल, सिंपली मल्टीप्लाई 53/20. अब आपको ये पता है कि राइट हैंड साइड आपका डेसिमल फॉर्म में था, तो आपने 53/20 को भी डेसिमल में चेंज करना है. एंड क्या होगा डेसिमल में चेंज करके, 2.65, एंड दिस इज योर आंसर. अगर आपने डेसिमल में नहीं चेंज करना, फ्रैक्शन में नहीं चेंज करना, आप डेसिमल में भी रहने दे सकते हो, पर अगर आपको कन्फ्यूजन होती है डेसिमल में, देन यू कैन चेंज इट इनटू फ्रैक्शन ऑल्सो. बोथ द मेथड आर राइट. इन दिस पार्ट इट इज ऑल्सो टोल्ड एज टू चेक इट, वेरीफाई इट. यहाँ पे लिखा है चेक योर आंसर. अब आपने वेरिफिकेशन या चेक कैसे करना है, यू सी दैट y जो आपका है वो खाली लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है क्वेश्चन की. क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में, 2y माइनस 5/2, ऐसे आपने ले ली. अब आपने इसमें y की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली है वो यहाँ पे पुट करनी है. 2 ब्रैकेट 2.65 माइनस 5/2. सो सॉल्व दिस पार्ट. 2 अगर आप डेसिमल में रहने दोगे 2.65 माइनस इसको डेसिमल में चेंज कर लो, ये आपका क्या होगा डेसिमल में चेंज करके, 2.5. 2 डेसिमल है तो इसको भी 2 डेसिमल कर दिया. 2 और आपको जो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका आएगा 0.15. नाउ when you will multiply by 15.15/2 you will get 0.3. so what you observe, जो आपका राइट हैंड साइड है वही आपका आंसर आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख देना इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. सो यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू हैव टू चेक ऑल्सो. चेक वही साइड करोगे जहाँ पे वेरिएबल होगा, क्योंकि आपने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए. ओके, फॉर दिस टुडे यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ लीनियर इक्वेशन. एक बार आप इसको ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. थैंक यू.